السلام علیکم ناظرین، روشی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جس وقت بھی صبح کو یا شام کو اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی مہمانی کا سامان تیار کرواتے ہیں، وہ جتنی مرتبہ بھی صبح یا شام کو جائے۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ کاماریڈی میں 65 کروڑ 80 لاکھ روپے مالیاتی رقم سے امرود 2.0 ترقیاتی کاموں کا ریاستی مشیر محمد علی شبیر نے رکھا سنگ بنیاد۔ طالبات تعلیم میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام شعبے جات میں آگے بڑھے۔ نیشنل گرلز ڈے کے موقع پر شہر نظام آباد میں انعقاد عمل میں لائے گئے ریلی میں اربن ایم ایل اے دھن پال سوریہ نارائن گپتا نے شرکت کرتے ہوئے کیا خطاب۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر نظام آباد مجلس کی کامیاب نمائندگی۔ شب برات و رمضان المبارک کے پیش نظر میونسپل کارپوریشن کی جانب سے عیدگاہوں میں جھاڑیوں کی کٹوائی و صفائی کے کاموں کا آغاز۔ مختلف امراض سے متاثر ہو کر حیدرآباد میں طبی امداد حاصل کرنے والے متاثرہ خاندان کو سابقہ وزیر بالکنڈہ ایم ایل اے ویملا پرساد ریڈی نے LOC کی کاپی کی حوالے۔ طالبات کی ترقی کے لیے کوشش کریں۔ نیشنل گرلز ڈے کے موقع پر شہر نظام آباد میں ریلی کا کلکٹر الا ترپاٹھی نے کیا افتتاح۔ نظام آباد پولیس کمشنریٹ کے حدود میں صرف 5 دن میں 158 ڈرنک اینڈ ڈرائیو مقدمات کو درج کرنے کا CP سعید چیتنیا نے کیا اظہار۔ خصوصی ضروریات سے ملحقہ بچوں کو فلاح و بہبودی اسکیمات سے فائدہ پہنچائے۔ نظام آباد گورنمنٹ ہاسپٹل میں کلکٹر الا ترپاٹھی کے ہمراہ صدرم کیمپ کو ضلع جج GVN بھرت لکشمی نے کیا افتتاح۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی طرف۔ طلباء محنت اور یکسوئی کے ساتھ تعلیم حاصل کریں۔ بچکندہ گورنمنٹ اردو میڈیم اسکول کے طلباء میں امتحانی اشیاء کی تقسیم۔ بچکندہ گورنمنٹ ہائی اسکول اردو میڈیم میں سابقہ اسکول چیئرمین شیخ حسین کی جانب سے 10ویں جماعت کے طلباء کی تعلیمی فروغ کے مقصد کے تحت سالانہ امتحانات میں استعمال ہونے والی ضروری اشیاء کی تقسیم عمل میں آئی۔ یہ پروگرام اسکول کے احاطے میں منعقد کیا گیا، جس کا مقصد امتحانات کے دوران طلباء کو سہولت فراہم کرنا اور ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اس موقع پر مہمان خصوصی کی حیثیت سے منڈل ایجوکیشن آفیسر سرینواس ریڈی نے شرکت کی، جبکہ اقلیتی قائد کلیم پٹیل، مفتی محبوب قاسمی لائق بطور معزز مہمان موجود رہے۔ مہمانان خطاب کے دوران سابقہ اسکول چیئرمین شیخ حسین کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے تعلیمی تعاون سے طلباء میں اعتماد پیدا ہوتا ہے اور امتحانات کے دوران بہتر ماحول میسر آتا ہے۔ انہوں نے طلباء پر زور دیا کہ وہ محنت اور یکسوئی کے ساتھ تعلیم حاصل کریں، اور انہوں نے طلباء سے کہا کہ امتحانات کی تیاری میں مشغول رہیں اور سیل فون اور ٹی وی کے غیر ضروری استعمال نہ کرنے کی تلقین کی۔ آخری میں اسکول انتظامیہ اور اساتذہ نے شیخ حسین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی تعلیمی سرگرمی میں اسی طرح تعاون جاری رکھے۔ نوکری کے لیے پڑھنا چھوڑ دو، نوکری دینے کے لیے پڑھو۔ تم نوکری دینے والے بنو، نوکری دینے والے بنو، یہ سوچ بڑی رکھو۔ یہ تمام لوگ جو محنت کر کے آپ تک مٹیریل پہنچا رہے، اس کے پیچھے ایک ہی مقصد ہے کہ ہماری قوم ترقی کرے، ہماری بچیاں ترقی کرے، ہمارے بچے ترقی کرے۔ جب یہ قوم ترقی کریں گی، آنے والی نسل ترقی کریں گی۔ ہم پچھلے 15 سال سے ایک زمانہ ایسا تھا، اردو کا نام و نشان نہیں تھا ہمارے پاس، خالی 4th کلاس تک گھڑی کے نیچے چلتا تھا۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس اردو کا بول بھالا ہے، اردو کے رپورٹرز ہے، یہی اسکول میں پڑھے ہوئے آصف صاحب آج اردو کے لیے لڑ رہے، آج اردو کو زندہ کرے۔ محسن حافظ صاحب یہاں سے
कई लोग उर्दू के टीचर हमारे पास बने। हमारी बच्चियां, शेख हुसैन साहब की बच्ची त्रिबल आईटी को गई और पिटलम की एक बच्ची त्रिबल आईटी गई, टेलर है, नीचे शटर के सामने बैठ के थैले सीता, ताट सीता, ताट संचुल मुर्तर सर, उसका बेटी त्रिबल आईटी गई। हाँ, गुज़िश्ता हम एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम पिटलम में रखे थे, वो बच्ची आके इंग्लिश में स्पीच करी तो एमपी बीपी पटेल साहब अपने तरफ से उसको 21,000 रुपये इनाम दिए। किसकी बच्ची? ताट के बुनते सीती, उसका बाप वो ताट के थैले सीता, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, शेख गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े, वाजिद सर आपको से स्कूल में पढ़े, टीचर आपको से स्कूल में पढ़े, आपको से स्कूल में पढ़े, आपको से स्कूल में पढ़े, सब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला इसलिए तरक्की करता, यहाँ पे ट्रेन टीचर होते, यहाँ पे पढ़ाने वाले टीचर क्वालिफाइड होते, इन लोगों को मालूम होता। माह रमज़ान के पेश नज़र फुलांग कमेटी हाल में बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। सोशल वर्कर नदीम अहमद ने म्यूनसिपल ऑफिस पहुंचकर पेश की याददाश्त। फलाही व वेलफेयर कमेटी मदीना मस्जिद फुलांग के जॉइंट सेक्रेटरी नदीम अहमद ने निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से दरख्वास्त की है कि रमज़ानुल मुबारक से कबल डिवीज़न नंबर 46 फुलांग में वाक़े कम्युनिटी हॉल में बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए। इन्होंने ओहदेदारों पर जोर दिया कि वरंगकारी, बिजली की मरम्मत, पानी की पाइपलाइन की देखभाल और AC की मरम्मत जैसे कामों को शुरू करें और कम्युनिटी की सहूलियत के लिए इन्हें रमज़ान से पहले मुकम्मल करें। आज म्यूनसिपल कमिश्नर में हम फलाही वेलफेयर कमेटी मदीना मस्जिद की जानिब से एक दरख्वास्त दिए कि महल फुलांग के कमेटी हाल में जो रमज़ान के मौके पर जो हर साल जो कलर डालते हैं, गुज़िश्ता 2 साल से नहीं डाला गया, मगर इस बार कलर डालना बोल के हम एक एप्लीकेशन दिए म्यूनसिपल कमिश्नर साहब को कि वहाँ पे समात कुरान और तरावी का एहतमाम किया जाता है रमज़ान के मौके पर, और वहाँ पे पोलिंग बूथ भी रहता है अगर इलेक्शन के टाइम पे, तो लिहाजा हमारी अदबन गुजारिश है कि महल फुलांग की कमेटी हाल में वहाँ पे पेंट डालकर वहाँ पे वाटर के पाइप लाइनिंग जो भी है वाटर के लिए साफ़ सफाई रखना वहाँ पे, और लाइट लगाना हर जगह मस्जिदों के पास और कमेटी हाल के पास जो रमज़ान आने वाला है। मदीना मस्जिद, मस्जिद तौहीद, आमिना मस्जिद, फातिमा मस्जिद के पास ये कलर, ये लाइटां लगाना बोल के हम हर साल भी देते, और लिहाजा हमारी यही गुजारिश है कि महल फुलांग की कमेटी हाल में कलर डाला जाए और महल की फुलांग की तरक्की के लिए, और हर वक्त हम काम करते रहते हैं और इंशाल्लाह कराते आते रहेंगे इंशाल्लाह। और हम ये महल की आवाम से अदबन गुजारिश कर रहे हैं कि हर वक्त हमारा साथ दिए तो ऐसे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निज़ामाबाद मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी। शब बारात व रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से ईदगाहों में झाड़ियों की कटवाई व सफाई के कामों का आगाज़। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रवां माह 19 जनवरी को निज़ामाबाद मजलिस कायदीन वफद की म्यूनसिपल कमिश्नर से शब बारात व माह रमज़ानुल मुबारक की आमद के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ कब्रस्तानों में झाड़ियों की कटवाई व सफाई और दीगर इक़दामात को यकीनी बनाने की गई कामयाब नुमाइंदगी पर निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कब्रस्तानों में झाड़ियों की कटवाई व सफाई के कामों का आगाज कर दिया गया है। मजलिस कायदीन की नुमाइंदगी पर म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार ने शहर के तमाम कब्रस्तानों में साफ सफाई के कामों का आगाज करवाया, जिसमें कदीम व जदीद कब्रस्तान, असापल्ली कब्रस्तान, फुलांग कब्रस्तान, नागराम कब्रस्तान, डिवीजन 13 के दीगर कब्रस्तान में झाड़ियों की कटवाई व सफाई और LED लाइट्स व दीगर कामों का आगाज करते हुए शहर के मुख्तलिफ कब्रस्तानों में आने वाले मुसल्लहान, मसाजिद और ज़ायरीन को सहूलियात फराहम करने का तयक़ुन दिया है। अलावा आज टाउन सदर मजलिस शकील अहमद फाजिल व जिला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन और मजलिस कायदीन वफद ने म्यूनसिपल कमीशन की तवज्जो दिलाते हुए कहा कि स्पेशल फंड के तहत आने वाले रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र शहर के सलम इलाकों और शहर के हर मसाजिद के करीब LED लाइट्स लगाया जाए और मसाजिदों के करीब ग्रेवल स्टोन डस्ट के जरिए सड़कों के मरम्मती
کاموں کی تکمیل کی جائے تاکہ ماہ رمضان المبارک کے موقع پر مساجد کو آنے والے مصلیوں کو سہولیات فراہم ہو سکے۔ ساتھ ہی ساتھ رمضان المبارک میں سحر اور افطار کے اوقات میں صاف شفاف پینے کے پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے اور نماز عید الفطر کے موقع پر عیدگاہوں کو آنے اور جانے والے سڑکوں کے مرمتی کاموں کی جلد تکمیل کا میونسپل کارپوریشن کے اسپیشل فنڈ کے تحت عیدگاہوں میں ٹینٹ، مائک سیٹ و دیگر کاموں کا انتخابی ضابطہ اخلاق سے قبل ٹینڈر لگا کر آغاز کیا جائے تاکہ رمضان المبارک سہولیات فراہم ہو سکے۔ اس موقع پر ٹاؤن جنرل سیکریٹری محمد شہباز احمد، سابقہ کارپوریٹرز محمد ریاض احمد، عبدالسلیم، محمد مستحسین اور خلیل احمد، ارشد پاشا، محمد سراج، محمد مشتاق موجود تھے۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہدایت پر 19 جنوری کو نظام آباد کے ٹاؤن صدر و ضلع صدر کے سب مل کر میونسپل کمشنر صاحب سے ملاقات کیے تھے MIM ٹیم، اور آنے والے شب برات اور رمضان المبارک کے پیش نظر میونسپل کارپوریشن کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی بہترین انتظامات کے تعلق سے ملاقات کی تھی، جس میں شب برات سے پہلے میونسپل کارپوریشن کی جانب سے تمام قبرستانوں میں نظام آباد کے صاف صفائی، جھاڑوں کے صاف صفائی اور LED لائٹنگ لگا کر آنے والے مسلمان بھائیوں کو جو زیارت کے لیے آتے ہیں قبرستان کے لیے، ان کی سہولت کے لیے ایک نمائندگی کی گئی تھی۔ اس نمائندگی کے بعد الحمدللہ میونسپل کمشنر صاحب نے قبرستانوں کے صاف صفائی کا کاموں کا آغاز کیا، اور تمام نظام آباد کے قبرستان، جس میں کچا مسجد بھودن روڈ، جدید قلعہ شانتی نگر قبرستان، پلانگ، ڈیری فارم، عرصہ پلی، ناگارام اور دھرم پوری ڈویژن نمبر 13 قبرستان، جتنے بھی قبرستان ہیں تمام قبرستانوں کے کاموں کا آغاز ہوا، اور انشاءاللہ اچھے سے انتظامات کرنے کا کمشنر صاحب نے اور بھی تیقن دیا آنے والے زیارت کے جو مسلمان بھائیوں کو سہولت کے لیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی توجہ دلائی تھی کہ ضلع صدر، ٹاؤن صدر اور ہمارے MIM ٹیم جب کمشنر صاحب سے ملے تھے، آنے والے رمضان المبارک کے پیش نظر الیکشن کے حالات کے دیکھ کر جلد سے جلد ٹینڈر لگا کر طلب کر اسپیشل ٹینڈر، اور رمضان میں 1 مہینہ ہمارے مساجد کے سامنے سلم ایریز میں جہاں مساجد کے سامنے روڈ خراب ہے، وہ روڈوں کی مرمت کے لیے، مصلیوں کو نماز کو آنے کی سہولت کے لیے، اور مساجد کے سامنے لائٹنگ لگانے کے لیے، اور گریول، اسٹون ڈسٹ، تمام چیزیں سہولت کرتے ہوئے مساجد سلم ایریا میں سہولت دینے کے لیے بھی توجہ دلائی، اور ساتھ ہی ساتھ سحر کے ٹائم پہ اور شام میں افطار کے بعد بھی نل کا جو سو پانی جو سپلائی کرنے کی بھی نمائندگی کی تھی، اور عید کی نمازوں کے لیے جو مصلی آتے ہیں عیدگاہوں میں، جتنے بھی نظام آباد کے عیدگاہ ہیں تمام عیدگاہوں میں جو روڈ پر جو مرمت کے لیے اسپیشل فنڈ کے تحت گراول، اسٹون ڈسٹ، پیچز اور ٹینٹ کا جو ٹینڈر ہوتا ہے میونسپل کی طرف سے، مائک سیٹ کا ٹینڈر ہوتا ہے تمام عیدگاہوں کا، ان تمام کا احاطہ لے کے ہم پوری نمائندگی کیے تھے کمشنر صاحب کے، تاکہ الیکشن لگنے کے بعد کاموں میں تاخیر نہ ہو اور پریشانی نہ ہو روزداروں کو۔ اس تعلق سے بھی میونسپل کمشنر صاحب تمام ایج کو بول دیے تھے ان کا ٹینڈر لا کے جلد سے طلب کرو، ہمارے کو امید ہے میونسپل کمشنر صاحب جلد سے جلد کام کریں گے، اور یہ جو شب برات کا جو ہم آج انسپیکشن کرے آ کے ہمارے تمام جو سو کام چل رہے اور بھی اسپیڈ کر LED لائٹنگ ووٹنگ لگا کے ہمارے زیارت کرنے والے آنے والے زیارت کے لیے قبرستان کو مسلمان بھائیوں کو سہولت مل سکے۔ خواتین کو کینسر سے محفوظ رکھنے کے لیے حکومت کی جانب سے عنقریب HPV ٹیکہ دیا جائے گا۔ 14 سال سے کم عمر کی لڑکیاں اپنے قریبی ہیلتھ سینٹر میں اپنا نام درج کروائیں، ذمہ داروں کی اپیل۔ ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر راجیشوری کی HPV ٹیکہ متعارف کر رہی ہیں۔ اطلاع کے باموجب حکومت تلنگانہ عنقریب ٹیکہ خواتین کے ہونے والے خطرناک کینسر سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ٹیکہ عالمی سطح پر بہت ہی محفوظ ٹیکہ قرار دیا جا رہا ہے۔ HPV ٹیکہ خواتین میں ہونے والے کینسر کا مرض، بچے دانی کا کینسر، سروٹیکل کینسر، چھاتی کا کینسر وغیرہ خطرناک کینسر سے محفوظ رکھتا ہے۔
सकता है और ये टीका सिर्फ 14 साल उम्र की लड़कियों को ही दिया जाएगा। ऐसे लड़कियां जिनकी उम्र 14 साल मुकम्मल हो गई हो और अभी भी 15 साल के करीब हैं, इन्हीं लड़कियों को दिया जाएगा। लिहाजा डॉक्टर राजेश्वरी ने आवाम से अपील की कि ऐसे अफराद जिनके घरों में 14 साल की लड़कियां हैं वो अपने अपने करीबी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाकर नाम और पता दर्ज कराएं। इसी तरह निजामाबाद में अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर मालापल्ली पर भी आकर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। कामारेड्डी शहर में आवाम को पीने के पानी के मसाइल को हल करते बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाने के मकसद के तहत हुकूमत खिदमत अंजाम देने का रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बी ने किया इजहार। कामारेड्डी में अमरूद 2.0 स्कीम के तहत 65 करोड़ 80 लाख रुपये मालती रकम से शुरू किए जाने वाले मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बी ने संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर इन्होंने खिताब के दौरान कहा कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बढ़ती हुई आबादी के मुताबिक पीने के पानी की सरबराही को बेहतर बनाने के लिए 4 नए भारी वाटर टैंक की तामीरी अमल में लाई गई है और इसके अलावा इस्लामपुरा कॉलोनी में 5 लाख लीटर की गुंजाइश 1.2 करोड़ और लिटिल स्कॉलर स्कूल के इलाके में 5 लाख लीटर की गुंजाइश 1.3 करोड़ रुपये और ग्रीन सिटी कॉलोनी में 5 लाख लीटर की गुंजाइश 1.2 करोड़ रुपए के अलावा शहर के कांग्रेस नगर लिंगापुर वार्ड में सीसी रोड तामीरी कामों का भी आगाज अमल में लाया गया। इस मौके पर क़याम अमल में लाए गए जलसे आम में रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बी ने कहा कि आवाम की जरूरियात की निशानदेही करते हुए किए गए तरक्याती कामों की वजह से नाम तारीख के औराक में रहेगा। इन्होंने कहा कि सियासत को अखलाकी और दयानतदाराना होना चाहिए, असल कामयाबी आवाम के दिलों में जगह बनाना है। इन्होंने मजीद कहा कि वो जात पात पर मबनी सियासत से हमेशा दूर रहेंगे, लेकिन तरक्की के मामले में इम्तियाज की कोई गुंजाइश नहीं होगी, बल्कि सबको यकसा कवायद मिलने का इन्होंने इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी नुमाइंदे मुंसिपल ओहदेदारान के अलावा शहरी अवाम मौजूद थे। साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए वेमला प्रशांत रेड्डी ने मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले मुतासिरीन को 3 लाख रुपये का LOC किया हवाले। साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए वेमला प्रशांत रेड्डी ने हैदराबाद के क़यामगाह में हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में मुख्तलिफ सेहत के मसाइल पर मुब्तला होकर तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले दोनों मुतासिरीन को 3 लाख रुपये मालती रकम पर मबनी LOC की कॉपी हवाले किया। LOC हासिल करने वालों की तफसीलात कुछ इस तरह से: एरगडला मंडल के गुमनी रियाल से ताल्लुक रखने वाले M तनोश गौड को 2 लाख रुपए का चेक और बालकोंडा के साकिन मोहम्मद फतेह अहमद को 2 लाख रुपए का चेक हवाले किया। इस मौके पर मुतासिरीन व इनके अफराद खानदान ने साबिका वजीर बालकोंडा एमएलए प्रशांत रेड्डी को इजहार तशक्कुर किया। तालिबात की तालीम व इनकी तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी खुसूसी दिलचस्पी लेने का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने किया इजहार। निजामाबाद के मराकज पर वाक़े न्यू अम्बेडकर भवन में वुमेन चिल्ड्रन डिसेबल्ड सीनियर सिटीजन डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम कौमी यौम तालिबात का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्यनारायण गुप्ता ने रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी के हमरा शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तालिबात पर हमले से पाक मुआशरे को हासिल करेंगे व इनके हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए हर एक शख्स कोशिश करने की अपील की। इन्होंने कहा कि तालिबात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हुए इन्हें बेहतर जिंदगी देना निहायत ज़रूरी है और लड़कियां भी मुस्तक़बिल में आने वाली नस्लों के लिए बुनियाद है। इसीलिए मरकजी हुकूमत बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ वो स्कीम के तहत लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ और तालीम के लिए तरजीह दे रही है और इसके अलावा लड़कियों के मुस्तक़बिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुकन्या समृद्धि योजना और ग़िज़ा से भरपूर खुराक के लिए PM बोनस स्कीम दही इलाकों में लड़कियों की तालीम के लिए कस्तूरबा गांधी बालिकला विद्यालय और तालीम की हौसला अफजाई स्कीम प्रोग्राम को रूबे अमल में लाया जा रहा है। इससे हर एक को इस्तेफादा हासिल करने की ताकीद की। బాలికల చదువుకొని ధైర్యంగా నిలబడి సమాజంలో గౌరవప్రదమైన స్థానం సంపాదించుకునేందుకు ఎంతో ఉపయోగపడుతూ ఉంది ఇవన్నీ కూడా స్కీమ్। బాలికలకు సమాన అవకాశం కల్పించడం మనందరి బాధ్యత। ఒక బాలిక చదువుకుంటే
ఒక కుటుంబమే కాదు, ఒక తరం ముందుకు సాగుతాం. బాలికలు చదువుకుంటే ఒక కుటుంబం కాదు, ఒక తరం ముందుకు సాగు. కాబట్టి తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులు, ప్రజాప్రతినిధులు, కుటుంబ సభ్యులు మనమందరం కలిసి బాలికల కళలను విజయం చేయాలని మీ అందరినీ కూడా కోరుతాము. ఈ సందర్భంగా ప్రతి బాలిక ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగాలని, ప్రభుత్వం అందిస్తున్న అవకాశాలను పూర్తిగా వినియోగించుకోవాలని కోరుకుంటూ మీ అందరికీ खुसूसी ज़रूरियात से मुलाका बच्चों के लिए हुकूमत फलाह व बहबूदी स्कीमात के तहत मुकम्मल सतह पर फ़ायदा पहुँचाने के लिए इससे मुतालिक महकमे जात के ओहदेदारों को खुसूसी दिलचस्पी लेने की ज़िला जज जीवीएन भरत लक्ष्मी ने की ताकीद। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की खुसूसी दिलचस्पी के तहत DRDS रब व एजुकेशन डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम ज़िला निज़ामाबाद जनरल हॉस्पिटल में खुसूसी ज़रूरियात वाले बच्चों के लिए सदरम कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस कैंप को कलेक्टर इल्ला त्रिपाठी के हमरा जिला जज ने शानदार पैमाने पर इफ्तिताह किया। इस मौके पर जिला जज ने कहा कि वो इनके मासूर बच्चों के लिए सदरम सर्टिफिकेट और आसरा पेंशन फराहम करने के लिए मुख्तलिफ अफराद ने मुलाकात करते हुए ख्वाहिश करने के बाइस इससे मुतालिक ओहदेदारान से रब्त पैदा करते हुए जिला कलेक्टर के हिमायत से इस खुसूसी सदरम कैंप का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि माजूर बच्चे इनके लिए ज़रूरी चीज़ों को तलब करने की हालत में इन्हें रहते हैं, इसलिए इनकी ज़रूरियात को इससे मुतालिक ओहदेदारान निशानदही करते हुए मदद करने की ताकीद की। जिला कलेक्टर इल्ला त्रिपाठी ने कहा कि इस कैंप में सदरम सर्टिफिकेट फराहम करने के बाद पहले अफराद को फौरी तौर पर आसरा पेंशन मंजूरी अमल में लाने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से खुसूसी दिलचस्पी लेने का इजहार किया। పంపించాము। ఆ రోజు మాకు ఏం తెలిసిందంటే భవిత సెంటర్లో ఏదైతే మేము అక్కడికి వెళ్ళి మా సెక్రటరీ గారు చూసారో అక్కడ ఈవెన్ టాయిలెట్ ఫెసిలిటీస్, ఈవెన్ డ్రింకింగ్ ఫెసిలిటీస్ కూడా లేవు అని వారు మా దృష్టికి తీసుకొచ్చారు। తర్వాత ఈ పిల్లలకు ఈ సదరన్ సర్టిఫికెట్స్ కూడా ఇష్యూ చేయడం లేదు, దానికి సంబంధించినటువంటి డాక్టర్స్ అవైలబుల్గా లేరు, చెక్ చేసి ఇష్యూ చేయడానికి అని చెప్పారు। సో ఇమ్మీడియట్గా నేను వారికి సంబంధించినటువంటి అధికారులతో మాట్లాడాను। ఒక 2 రోజుల్లోనే డ్రింకింగ్ వాటర్, బాత్రూమ్ ఫెసిలిటీ, టాయిలెట్ ఫెసిలిటీ వాళ్ళకి రెస్టోర్ చేశారు। అయ్యా భవిత సెంటర్స్ రన్ చేసేటటువంటి అధికారులకి నేను ప్రత్యేకంగా అడుగుతున్నాను, అక్కడ ఉన్న పిల్లలు ఏది కూడా నోరు తెచ్చి అడగలేని పరిస్థితి। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में सिर्फ 5 दिन में 158 ड्रंक एंड ड्राइव मुकदमात को दर्ज करने का CP सईद चैतन्य ने किया इजहार। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में वाक़े निज़ामाबाद बोधन डिवीज़न ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के इहाते में वाक़े तमाम पुलिस स्टेशन के करीब में मौजूद पुलिस स्टेशन के हुदूद में गाड़ियों की तनक़ी अमल में लाई गई। इस हिस्से के तहत 19 जनवरी से 23 तारीख तक गाड़ियों की तनख़ी अमल में लाते हुए कुल 158 मुकदमात को दर्ज किया। इससे मुतालिक अफराद को कोर्ट में पेश करने के बाइस इन पर 14,50,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। इसमें मुलविस 13 अफराद को 1 हफ्ते तक जेल की सजा सुनाई। निज़ामाबाद पुलिस कमिश्नर की जानिब से बताया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि अवाम शराब नोशी करके गाड़ियां ना चलाएं, गाड़ियां चलाने के दौरान इससे मुतालिक दस्तावेज़ात को अपने साथ रखने की ताकीद की। अनकरीब मुनक़िद होने वाले मजलिस बल्दिया इंतखाबात में मुकाबला करने का तेलंगाना जागृति ने किया फैसला। तेलंगाना जागृति अनकरीब मुनक़िद होने वाले मजलिस बल्दियाती इंतखाबात में मुकाबला करने का फैसला किया है, तो दूसरी तरफ इस पार्टी के कायदीन सियासी पार्टी के रजिस्ट्रेशन के रफ्तार बढ़ा रही है। पार्टी का रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होने के लिए 3 माह का वक्त लगने का इम्कान है। इससे म्यूनसिपलिटी, MPTC, ZPTC इंतखाबात में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लैक शेर के निशान से मुकाबला करने का फैसला किया गया है। इस हिस्से के तहत AIFB रियासती क़ियादत में तबादला ख्याल होने की इत्तला मौसूल हुई है। मुत्तहिदा निशान के लिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लैक बी फॉर्म से मुकाबला करने का इम्कान है। शहर के नंदी गुट्टा नागराम में वाक़ माइनॉरिटी रेसिडेंशियल गर्ल्स 4 में दाखिलों का आगाज अमल में लाने का प्रिंसिपल E ज्योति ने किया इजहार।
शहर के नंदी गुट्टा नागराम में वाक़ माइनॉरिटी रेसिडेंशियल गर्ल्स फोरम में ऑनलाइन दाखिले की इफ्तिताही तकरीब कामयाबी के साथ मुकम्मल हुई। इस प्रोग्राम में माइनॉरिटी कायदीन मजीद इमाम और RLC बशीर सार के अलावा कांग्रेस पार्टी के कायदीन और प्रिंसिपल ई ज्योति और असातिज़ा साहिबीन के अलावा तुलबा के वालिदैन ने दाखिलों का बाज़ाब्ता इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद करते हुए पोस्टर और बैनर की नकाब कुशाई अमल में लाई गई। इस मौके पर प्रिंसिपल ई ज्योति ने इस मौके से तुलबा के वालिदैन को इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। तालिबात के तय इम्तियाजी सलूक के बगैर इनकी तरक्की के लिए कोशिश करने की कलेक्टर इल्ला त्रिपाठी ने की ताकीद। नेशनल गर्ल्स डे के मद्देनजर खवातीन व महकमे अतफाल बहबूद के ज़ेर एहतमाम शहर निज़ामाबाद में शुरू किए जाने वाली रैली को कलेक्टर ने झंडा लहराते हुए आगाज अमल में लाया, जो कि कदीम कलेक्टर ग्राउंड से अहम तरीन शाहराहों से होते हुए न्यू अम्बेडकर भवन तक रैली जारी रही। इस दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और तालिबात को तहफ़्फ़ुज़ करने के ताल्लुक से नारे लगाते हुए तालिबात के जोश व खरोश के साथ रैली में शिरकत की। इस प्रोग्राम में DWO रसूल बी, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफिसर पवन कुमार के अलावा तालिबात ने शिरकत की। कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार पर आने के बाद किसानों को बादशाह बनाने का रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया इजहार। रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तियार पर आने के बाद किसानों को बादशाह बनाया है, जो कि शहर निज़ामाबाद में वाक़ कनपेशर बाईपास रोड पर वाक़ रूरल MLA कैंप दफ्तर में तेलंगाना हुकूमत महकमे ज़राअत के ज़ेर एहतमाम इनेकाद अमल में लाए गए ज़री मेकानिजेशन काम के सामान की फराहमी अमल में लाने वाले प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तियार पर आने के बाद किसानों का कर्ज माफ किया है और रईतु भरोसा बोनस दिया गया और इसके अलावा हमारे जिले में जायद फसलों की काश्तकारी हुई है, इसलिए निज़ामाबाद किसानों को ज्यादा बोनस दिया गया है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के दौरे इख्तियार में सब्सिडी के तहत महकमे ज़राअत की जानिब से किसानों को 50% काम के सामान की तकसीम अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में AMC चेयरमैन A गंगा रेड्डी, ब्लैक कांग्रेस सदर P श्रीनिवास के अलावा दीगर ने शिरकत की। వాళ్ళకందరూ కూడా ప్రత్యేకమైన శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ మరి మీరందరూ కూడా ఇవాళ తెలంగాణ అంటే ఒకప్పుడు వెనుకబడిన ప్రాంతం, ఇవాళ మనం తెలంగాణ నంబర్ 1 వ్యవసాయంలో నంబర్ 1 ఉంది దేశంలో. మన దగ్గర పండినటువంటి పంట వరి కావచ్చు, పత్తి కావచ్చు, ఇవాళ ఎక్కడ ఏ దేశంలో మనకంటే పెద్ద రాష్ట్రాలు చాలా ఉన్నాయి. ఉత్తరప్రదేశ్ ఉన్నది, మహారాష్ట్ర ఉంది, పెద్ద పెద్ద రాష్ట్రాలలో కూడా మనంతా వరి పండిస్తలేరు. వరి ఇవాళ నంబర్ 1 పొజిషన్లో మనమే ఉన్నాం. మరి పండించిన పంట కూడా గిట్టుబాటు ధర కూడా ఇస్తూ మరి ఎక్కడ కూడా అన్ని రంగాలను ఇన్వాల్వ్ చేసి ఇప్పుడు సొసైటీస్ కావచ్చు, IKPలు కావచ్చు, ఇంకా అన్నీ కూడా కలిసి ఇలా ప్రొక్యూర్మెంట్ కూడా ఇక్కడ కూడా ఇబ్బంది లేకుండా, లారీల కొరత లేకుండా, మరి ఎక్కడ మినీ బ్యాగ్ కొరత లేకుండా, కటింగ్ లేకుండా మనకు మొత్తం కూడా लक्कमपल्ली में वाक़ स्कूल में ज़ेर तालीम तुलबा को नौ मुंतखब सरपंच की जानिब से 3000 मालियती रकम पर मबनी स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म की तकसीम। लक्कमपल्ली में वाक़ स्कूल में ज़ेर तालीम तुलबा को नौ मुंतखब सरपंच संतोष गौड़ की जानिब से 3000 मालियती रकम पर मबनी स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म की तकसीम अमल में लाई गई। प्रोग्राम में मौजू के सरपंच संतोष गौड़, नायब सरपंच S श्रीकांत, सदर मुदर्रिस भूषण, असातिज़ा साहिबीन, गंगाधर स्कूल के अमले के अलावा वार्ड मेंबर्स, VDC अराकीन व दीगर ने शिरकत की। पोदन शहर के इंदूर व प्राइमरी स्कूल में रोड सेफ्टी तकारीब का किया गया इनेकाद। पोदन शहर में वाक़ इंदूर प्राइमरी स्कूल के ज़ेर एहतमाम तुलबा ने रोड सेफ्टी शऊर बेदारी अमल में लाई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल मालिकिन गाड़ी चलाते वक्त सर पर यकीनी तौर पर हेलमेट लगाए और हर एक शख्स ट्रैफिक कवायद पर अमल आवारी करते महकमे पुलिस के साथ ताउन करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में बोधन ACP श्रीनिवास और इंदूर करस्पॉन्डेंट किशोर कुमार के अलावा वेंकट रामना MVI श्रीनिवास ने शिरकत की। जकरानपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ आंगनवाड़ी सेंटर में ज़ेर तालीम तुलबा को ज़रूरी अशिया की फराहमी अमल में लाई गई।
चक्रानपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़े आंगनवाड़ी सेंटर में ज़ेरे तालीम तुलबा को सरपंच बी पद्मा सत्तम तख्ती व दीगर ज़रूरी अशिया की फराहमी अमल में लाएगी। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद दूसरी बार बच्चों को अशिया के लिए ज़रूरी चीज़ों की फराहमी अमल में लाएगी। इन्होंने कहा कि मंडल में वाक़े आंगनवाड़ी सेंटर में ज़ेरे तालीम तुलबा के लिए दरकार अशिया की फराहमी अमल में लाने का इजहार किया। इन्होंने सीएम रेवंत रेड्डी, रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी को इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में मॉडल स्कूल प्रिंसिपल सुधा रानी ने हालिया नौ मुंतखब सरपंचों और मजलिस बल्दिया के अराकीन की तहनीत अमल में लाई गई। शहर निजामाबाद में वाक़े आरटीसी डिपो 1 में रोड सेफ्टी तकारीब का किया गया इनेकाद। शहर निजामाबाद में वाक़े आरटीसी डिपो 1 में टीजीएस आरटीसी निजामाबाद रीजन में रोड सेफ्टी तकारीब मुनाकिद की गई। प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर अंकित आरटीसी RM जोसना ने शिरकत की। इस मौके पर RM जोसना ने कहा कि गुज़िश्ता साल 8% सड़क हादसात हुए तो इस साल 7% हुए हैं। गुज़िश्ता साल के बानिस्बत हादसात की तादाद में कमी आई है। इस प्रोग्राम के मद्देनजर एडिशनल कलेक्टर अंकित ने कहा कि रोड सेफ्टी के तहत हादसात से पाक सफर बनाने के मकसद के तहत ड्राइवर खिदमत अंजाम देना निहायत जरूरी है और हर एक शख्स रोड सेफ्टी के बारे में यकीनी तौर पर आगाही हासिल करे। बादनज़र रोड सेफ्टी तकारीब के तहत मुख्तलिफ इलाकों में स्कूल के तुलबा के लिए इनेकाद अमल में लाए गए मुकाबला जात में कामयाबी हासिल करने वाले तुलबा को एडिशनल कलेक्टर के हाथों इनामत हवाले किए। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। कामारेड्डी में 65 करोड़ 80 लाख रुपये मालियाती रकम से अमरूद 2.0 तरक्याती कामों का रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने रखा संगे बुनियाद। तालिबात तालीम में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए तमाम शोबे जात में आगे बढ़े। नेशनल गर्ल्स डे के मौके पर शहर निजामाबाद में इनेकाद अमल में लाए गए रैली में अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने शिरकत करते हुए किया खिताब। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर निजामाबाद मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी। शब बारात व रमजानुल मुबारक के पेश नज़र म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से ईदगाहों में झाड़ियों की कटवाई व सफाई के कामों का आगाज। मुख्तलिफ अमराज से मुतासिर होकर हैदराबाद में तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले मुतासिरा खानदान को साबिक़ा वजीर बालकोंडा MLA वेमला प्रसाद रेड्डी ने LOC की कॉपी की हवाले। तालिबात की तरक्की के लिए कोशिश करें। नेशनल गर्ल्स डे के मौके पर शहर निजामाबाद में रैली का कलेक्टर इल्ला त्रिपाठी ने किया इफ्तिताह। निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में सिर्फ 5 दिन में 158 ड्रंक एंड ड्राइव मुकदमात को दर्ज करने का CP सई चैतन्य ने किया इजहार। खुसूसी जरूरियात से मुलाकात बच्चों को फलाह व बहबूदी स्कीमात से फायदा पहुंचाए। निजामाबाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कलेक्टर इल्ला त्रिपाठी के हमरा सदरम कैंप को जिला जज GVN भरत लक्ष्मी ने किया इफ्तिताह। आज के लिए इतना ही, दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।